आज का टॉपिक है हेयर से एविडेंस। हेयर से एविडेंस मैं चाहूंगा कि सुरेंद्र जी इसकी स्टार्ट करें और वो अपने विचार रखें। सुरेंद्र जी प्लीज। सुरेंद्र जी माइक आपका अनम्यूट कर लें। Thank you, everyone. See, as the topic suggests, hearsay. So, if we go with the Evidence Act, so it is crystal clear that though we are discussing this hearsay, but in the Evidence Act we will not find this word hearsay. So probably the first question comes to our mind is that how this hearsay has come into picture when we do not find this in our Evidence Act. So now, then what is hearsay? Hearsay is something that which is not direct, like from someone I have heard, which he has said about any third person, which may be directly linked to him or which may not be directly linked to him. But the point is that it is not a direct evidence. This is very crystal clear that this is not a direct evidence. And as per the Evidence Act, when we talk about the evidence, it has to be a direct, whether it is oral or whether it is a documentary. But now coming to this, then when we talk about the hearsay evidence, so it is very clear that it is a very, very weak piece of evidence, very, very weak piece of evidence. We cannot eliminate this as being an evidence because that's what we are discussing, that's what it is called hearsay. So we cannot eliminate it as that now it doesn't exist. It exists, but then in what form? When we speak about direct evidence, oral evidence, I think section 60 comes into picture, 60 then 64, that oral evidence and the documentary evidence. So it has to be primary, direct, then secondary, and there are various forms. But again, in that also you will not find that what is hearsay or whether it is admissible or not. So the point is that during the course of interpretations, during the course of passing of the judgments by various courts, now this has come into play, and also it is there, but in a very different form. So now we can find it in section 6 of the Evidence Act, which speaks about the res geste or res geste as per the pronunciation. So now res geste is that something where things are connected, that anything which is particularly not an issue, any matter which is not an issue, but in connected in such a way which is spontaneous and which connects the other things. Like I'm giving you one simple example. Now as I say that now the issue is that there was at a public place, the question was that somebody shot someone. Now if XYZ reaches at the spot after the incident had already happened, the accused has already fled away, but now he reaches at the spot and now he gathers the information that now there are rumors that somebody is calling that, and somebody is saying that so and so has shot or has a fire on this person. So now when the question comes that whether the fire took place or not, whether there was gunshot fire or not, so in that case that question would be relevant, although a hearsay evidence, because when we talk about the whether the fire took place or not, so then it is a chain that A, B, C, D. Now they all are speaking about this fact that yes, there was a gunshot which was fired at the public place. So to that extent, it would be taken into consideration to make a chain, to make that the things happen, to make that it is res geste, though it is directly not an issue. Issue is that whether so and so accused has fired a shot on that person. So that since if that has not been seen by a person, so but the relevancy is that when we talk about that the event has happened or not.
So in that case, it is very relevant under section 6 of the Evidence Act, being a res geste. Now, second, we find under dying declaration. That is also an exception to the hearsay evidence or the direct evidence, that it has to be direct, it has to be oral. Now, in dying declaration also, that when a person, now suppose in this case also, when a person reaches and the injured gives the statement to that person that so and so person has killed me or fired a shot upon me. So although it is a hearsay evidence, because he has not witnessed, he has not seen, he has not heard from that direct person, but this being a dying declaration, this would come under the category of hearsay evidence, but it is protected under section 32 of the Evidence Act. So these are the few instances wherein there are also few instances wherein, like when evidence of formal character or something, when there is a entering the records, public documents and all that also, even though the person is not available. So that would also be taken as a consideration in the hearsay evidence, but relevant in those contexts. So my point is that though it is a very, very weak piece of evidence, but we cannot eliminate it being completely irrelevant. It is relevant, but under very exceptional circumstances, as I have mentioned to best of my knowledge and the things which I have gone through. हाँ जी सर, अभिषेक जी. Sir, I am clear about this topic. और सुरेंद्र जी ने बहुत अच्छी तरह डिटेल में एक्सप्लेन किया है सेक्शन 6 का रेफरेंस देते हुए. पर there was a doubt in regarding to hearsay admission, hearsay evidence admissibility, which was raised by Randeep ji. तो रणदीप जी, हाँ भाई, अगर हम उसको और ले लें तो हमें क्लैरिटी और आ जाएगी इस टॉपिक के बारे में. तो रणदीप जी. बिल्कुल सर. सर कल जैसे मैंने जिस सिचुएशन की बात करी थी उसको भी ले लेते हैं. वैसे जनरली रेस जेस्टे जो हियरसे एविडेंस है मोस्टली 99% यूज्ड इन क्रिमिनल केसेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. प्लीज मुझे करेक्ट कर दिया जाएगा जहां भी मैं गलत बोलूं. मैं आप सब लोग से कम हूं एक्सपीरियंस में, लेकिन फिर भी जितना मुझे पता है मैं उस हिसाब से बोल रहा हूं. मैंने इस पे डिटेल स्टडी किया था पहले भी और आज भी किया. मैंने रतन लाल, धीरज लाल को रेफर किया और मैंने इसको सरकार ऑन एविडेंस को रेफर किया. कुछ मैंने मुल्ला का कंटेक्स्ट पढ़ा है थ्रू ऑनलाइन. तो जहां तक मुझे समझ में आया, कल अभिषेक सर ने एक वर्ड बोला था कि आपके नॉलेज में कहां से आया वो फैक्ट. आई एम करेक्ट सर? यस, कंटिन्यू प्लीज. अब नॉलेज में आने के सर बहुत सारे तरीके हैं. सुना भी जा सकता है, देखा भी जा सकता है, स्मेल भी किया जा सकता है, टेस्ट भी किया जा सकता है. जो मुल्ला है वो कहते हैं कि परसीव्ड बाय एनी ऑफ द 5 सेंसेस. जिसने भी वो सेंसेस से परसीव किया हो उसके बाद उसको एज इट इज उसको बताया हो. बीच में अगर कोई इंटरप्रिटेशन अपनी जोड़ देता है तो दैट इज इनडायरेक्ट और हियरसे एविडेंस. जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे कि जो भी ये वेबिनार हो रहा है इसके अंदर से कोई भी अगर जाके कहता है कि सुरेंद्र सर हैड एक्सप्लेन्ड व्हाट इज हियरसे एविडेंस, तो दैट वुड बी अ डायरेक्ट एविडेंस. एंड सपोज एनी थर्ड पर्सन सेज कि सुरेंद्र सर, जो कि यहाँ पे थर्ड पर्सन आई एम रेफरिंग, जो इस वेबिनार में प्रेजेंट नहीं है करंटली, जो कि इस थर्ड यहां से बाहर जाके कहता है कि सुरेंद्र सर ने आज हियरसे एविडेंस के बारे में बताया, तो वो होगा इनडायरेक्ट एविडेंस. बट अगर वो ये कहता है कि मुझे अभिनव सर ने बताया कि सुरेंद्र सर ने आज वेबिनार में हियरसे एविडेंस के बारे में बताया था, तो इन रिस्पेक्ट टू दैट स्टेटमेंट दैट वुड बी द डायरेक्ट एविडेंस. मेरा ये कहना था. इसके सपोर्ट में सर कल आपने इसके अगेंस्ट एक लाइन पढ़ी थी. आपने कहा था
it refers to the fact which could be heard. It must be the evidence of a witness who says he heard it. हाँ, तो section सबसे 60 पहला पॉइंट part सर, 2. हाँ 60 पार्ट 2 सर। 66 सबसे पहली बात, ये वही बोल रहा है जो उसने सुना है, क्योंकि इसने बीच में एक सेंटेंस जोड़ दिया कि मुझे अभिनव सर ने बताया था, ना कि मैंने वो मीटिंग अटेंड करी थी। तो अगर हम एग्जांपल लें तो विद रिस्पेक्ट टू द हैपनिंग ऑफ द वेबिनार, नॉट अबाउट द कंटेंट्स ऑफ वेबिनार, with respect to the happening of webinar, that would be the direct statement, not the hearsay statement. Secondly, इससे आगे आ जाते हैं सर, हम इंटरप्रेशन में पढ़ते हैं कि statute should be read as whole. तो यहाँ पे सिर्फ heard की बात हुई है, तो इससे अगला जो हम सेंटेंस पढ़ते हैं, it refers to a fact which could be perceived by any other sense or in any other manner. It must be the evidence of witness who says he perceived it and a sense or in that manner. यानी जैसे उसने परसीव किया वैसे ही बता दिया, उसने अपना कोई सोच या अपनी कोई मिक्सिंग उसके अंदर नहीं डाली। यानी फिर से मैं स्ट्रेस कर रहा हूं इस वर्ड को कि उसने ये लाइन जोड़ दी बीच में कि मुझे अभिनव जी ने बताया कि वेबिनार में आज क्या हुआ था। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि ए पर्सन ने बी पर्सन को चाकू मारा, बी ने सी को बता दिया कि मुझे ए ने चाकू मारा था। अब सी कोर्ट में दो तरह की स्टेटमेंट देता है, एक में तो वो कहता है कि ए ने बी को मारा, एक में वो कहता है कि बी ने मुझे बताया कि ए ने मुझे चाकू मारा। दोनों में बहुत फर्क आ गया। पहली वाली जो स्टेटमेंट है दैट वुड बी द हियरसे स्टेटमेंट, बिकॉज सी वहां पे विटनेस नहीं था। सेकंड स्टेटमेंट वुड बी द डायरेक्ट स्टेटमेंट, व्हाई? बिकॉज सी हिमसेल्फ हर्ड इट फ्रॉम बी और ही डिडंट सेड कि ए ने बी को मारा है, ही जस्ट सेड कि ए ने बी को स्टैब किया है। इसके सपोर्ट में एक जजमेंट आई थी मुख्तियार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2009 सुप्रीम कोर्ट में। रणदीप जी मुझे एक बार क्लियर नहीं, दोबारा बताएंगे प्लीज ये एग्जांपल जो आपने लिया एबीसी वाला। सर ए ने बी को चाकू मारा, दिस इज अ इंसिडेंट, ठीक है, टैब किया, बी सी को बता देता है कि ए ने मुझे चाकू मारा है, ठीक है सर। अब सी दो तरह की स्टेटमेंट दे सकता है, या तो वो कोर्ट में जाके कहे कि सी ए किल्ड बी, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट वो देगा कि बी ने मुझे बताया कि ए ने बी को चाकू मारा, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट है सर वो डायरेक्ट स्टेटमेंट होगी, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हियरसे स्टेटमेंट होगी, बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट में वो जो कोर्ट में जाके बता रहा है वो। जी सर। यहाँ पे ना मैं अगर यही आपको करेक्ट करने की कोशिश करूं, मेरे ख्याल से जो इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हो बिल्कुल रिवर्स कर रहे हो जो हम लोग कर रहे हैं। इट्स टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी ऑन बोथ द एंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सेइंग इफ सी स्टेप्ड इनटू विटनेस बॉक्स बिफोर कोर्ट और वो स्टेटमेंट डिपोज करता है कि बी ने मेरे को बताया कि ए ने उसको मारा, तो दिस इज नॉट हियरसे एविडेंस। यहाँ हियरसे एविडेंस हुआ, पर क्योंकि उसने अभिषेक जी सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। रणदीप जी यही कह रहे हैं कि अगर वो विटनेस बॉक्स में जाके ये बताता है कि बी ने मुझे बताया तो वो हियरसे एविडेंस नहीं है, वो हियरसे नहीं है। जो भी रणदीप जी ने बता रहे हैं, so that is squarely covered by section 6 of the Evidence Act, which is a part of res geste, being part of the same transaction. अगर वो कुछ चीज सुनता है, देखता है और वो जाके विटनेस बॉक्स में बताता है, that is an exception to the hearsay and which is admissible in evidence and it is a relevant fact. जो रणदीप जी कह रहे हैं, that is an exception to hearsay, though it is an hearsay, but it is an exception to hearsay being part of res geste कि उसने मुझे बताया, लेकिन it will be squarely covered by section 6 जो उसके क्लॉजेस हैं कि भी वो कब सेक्शन 6 के अंडर when it is part of the same transaction, जब उसने उसको होते हुए कोई आदमी विटनेस का उसका विटनेस है किसी मॉब का या उसका उसको बात करते सुन लेता है, सपोजिटली एक आदमी ने एक्सीडेंट होते नहीं देखा, लेकिन उसने देखा एक आदमी गाड़ी चलाते हुए बड़ी तेजी से निकल गया, वो आदमी पीछे पीछे गया, वहां देखा एक आदमी इंजर्ड पड़ा है आगे, दो उसने एक्सीडेंट होते नहीं देखा और वो आदमी ये बताता है
कि मेरे को ये आदमी एक्सीडेंट करके चला गया, दो उसने एक्सीडेंट डायरेक्टली नहीं देखा, बट बीइंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, जो रणदीप जी कह रहे हैं, इट इज स्क्वायरली कवर्ड बाय सेक्शन 6। यही सेक्शन 6 एविडेंस एक्ट कहता है कि हेयर से जो है यहाँ पर जो है एक्सेप्शन उसको इसलिए बनाता है वो, कि यहाँ पे हमें कभी कभी जरूरत पड़ती है ऐसे विटनेस की जिसने कुछ डायरेक्टली नहीं देखा, लेकिन उसने कुछ ऐसा सुना जो कि कोर्ट के अंदर उसको रेलिवेंट फैक्ट बना के हम उसको प्रूव कर सकते हैं, बता के उसको प्रूव कर सकते हैं। आई थिंक सो क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे ये एक चीज का है, मैं जहां तक समझा, कि व्हाट इज हियरसे एविडेंस। हमारा क्वेश्चन तो यहाँ कहते हैं कि व्हाट इज हियरसे एविडेंस। आप हियरसे एविडेंस लेमैन भाषा में सुनी सुनाई बात, ठीक है ना जी, कि भी नहीं मैंने सर, किसी और से सुन लिया। सुनी सुनाई बात सर। यहाँ पे भी ना दो क्वेश्चन राइज हुए थे कल, कि एक ठीक है, किससे सुनी, और मतलब एक तो डायरेक्ट उस बंदे से सुनी जो इंजर्ड है और जिसकी अटेंडेंस प्रोक्योर नहीं की जा सकती, और एक उस बंदे से सुनी जिसको तीसरे बंदे ने बताया, मतलब वाया मीडिया आ गया। जैसे एक तो बी ने डायरेक्ट सी को बताया कि भैया मेरे को ए ने मारा, दैट इज हियरसे एविडेंस। अगर बी की अटेंडेंस प्रोक्योर नहीं होती तो दैट इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 32। बट अगर बी ने सी को बताया और सी डी को बताता है तो वो हियरसे एविडेंस में नहीं आएगी फॉर डी। नहीं, आप दोबारा बताएंगे अभिषेक जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ, रणदीप ने जो क्वेश्चन बताया कि ए ने बी को मारा और बी ने मरते वक्त सी को बता दिया कि भैया ए ने मेरे को मारा, दैट इज अ डाइंग डिक्लेरेशन। नहीं अभी That तो is direct second- dying declaration. अगर उसको करें तो हाँ, तो वो हाँ। हियरसे एविडेंस हो गई। अगर सी कोर्ट में आके गवाही देता है तो दैट इज हियरसे एविडेंस, बट दैट इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 32। अभिषेक जी, आई एम इंटरप्टिंग, सॉरी। देखिए थोड़ा सा ना आपके क्वेश्चंस में क्लैरिटी नहीं है, सॉरी टू से। देखिए या तो आप बाइफरकेट करें चीजों को कि भाई मैं वही क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए हमने पहले ही, अभी रणदीप जी ने भी, अभिनव सर ने पहले कहा कि भाई हियरसे एविडेंस जो है वो जहां पे सेक्शन 6 का पार्ट हो जाएगा, रेस जेस्टे। सो कोई भी फैक्ट विच इज नॉट इन इश्यू बट कनेक्टेड and within a circumstances it is, so that becomes relevant. उसकी एडमिसिबिलिटी या उस पे कितना वेटेज रहेगा कोर्ट में, अभी हम उस पे बात नहीं कर रहे। अभी जैसे जो एक्सीडेंट की बात अभिनव सर ने बताई कि भाई वो जैसे उसने होते हुए नहीं देखा, लेकिन वो उसके पीछे गया है, फिर उसने देखा कि भाई इंजर्ड वहां पे है, रोड पे गिरा हुआ है। तो जब क्वेश्चन ये आता है ना कि हाँ भाई इस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है या उस पर्टिकुलर स्पॉट पे एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके लिए वो सेक्शन 6 में कवर होता है कि हाँ यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। अब आप जैसे क्वेश्चन ये अगर रेज करेंगे कि क्या आपने देखा है, तो वहां पे हम डायरेक्ट की बात करते हैं कि हाँ भाई मेरे सामने हुआ है, मेरे सामने ये स्पीड में आ रहा था, इसने इसको टक्कर मारी, ये वहां पे गिर गया और ये मैंने देखा, बट मैंने देखा नहीं है। तो वो जो ट्रांजैक्शन है, साइमल्टेनियस जो ट्रांजैक्शन है कि वो उसके पीछे गया है, उसने गाड़ी को रोका, that is covered under section 6 being rest testing. I am not denying this fact. My question is कि हमारी जो क्वेरी थी, जो कल की क्वेरी थी, that is about hearsay evidence. हमने जो कल का टॉपिक छोड़ा था वो that is about कि what amounts to hearsay evidence. अब तो सर ये जो तीन चीजें हैं सेक्शन 6 के अंदर और सेक्शन 32 और सेक्शन 62 का जो क्लॉज बी ए बी सी डी हम चार पढ़ रहे हैं, नो डाउट इट क्लियर्स अबाउट द एविडेंस ऑफ आई विटनेस, हियरसे और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ये इन तीनों को डिस्कस करते हुए क्लियर करता है। आई एडमिट दिस फैक्ट। हमारा कल जो क्वेश्चन रह गया था डिस्कस करना, वो सिर्फ ये रह गया था कि व्हाट अमाउंट्स टू हियरसे एविडेंस, जिसके बीच में हमारा ओपिनियन डिफरेंट थे। तो रणदीप जी और जब हम कल डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि वी विल क्लैरिफाई इट टुमारो, ताकि हमें अपने अपने पॉइंट्स ज्यादा क्लियर हो सके। तो बाकी आप दोनों का जो व्यू पॉइंट है सेक्शन 6 को लेके, आई एडमिट इट्स टोटली आई एग्री विद इट। तो क्वेश्चन कि हियरसे एविडेंस का जो क्वेश्चन हमारा कल रह गया वो कैसे डिसाइड होगा? मैं भी यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, even though it is under section 6,
बट ये है hearsay ही, it is not direct. Exactly. आपने जो hearsay की बात की ना, तो हम भी ये कह रहे हैं कि it is hearsay evidence, but covered under this, क्योंकि अगर एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे और हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो एविडेंस एक्ट में ये कैटेगराइजेशन नहीं है, डायरेक्ट एविडेंस, इनडायरेक्ट एविडेंस, हियरसे एविडेंस, ये कैटेगराइजेशन नहीं है एविडेंस एक्ट में. एविडेंस एक्ट कहता है that it has to be direct, whether oral or documentary. अब ये टर्म इवॉल्व हुई कि, हाँ, अब ये टर्म इवॉल्व हुई कि हियरसे क्या है. अब आप एविडेंस एक्ट पढ़ लीजिए तो हियरसे आपको कोई टर्म नहीं मिलेगी. Sometimes there is फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा डेविएट कर रहा हूँ बट कनेक्टेड है. जैसे कि हम सीआरपीसी पढ़ते हैं, हम बार बार बेल की बात करते हैं, लेकिन पूरी सीआरपीसी में बेल कहीं डिफाइन नहीं है, बेल की कोई डेफिनेशन नहीं. बिल्कुल सर, बिल्कुल. हम आप सीआरपीसी पढ़ लीजिए, हम एफआईआर की बार बात करते हैं, कहीं पे भी वर्ड एफआईआर नहीं है सर, नहीं है. आई एडमिट सर. हम चलान की बात करते हैं तो कहीं पे भी वर्ड चलान नहीं है. बट आप नंबर ऑफ जजमेंट्स पढ़ लीजिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, आपको बार बार एफआईआर भी वर्ड मिलेगा, चलान भी वर्ड मिलेगा, जबकि वो लॉ में कहीं लिखा हुआ नहीं. बिल्कुल सर. जबकि ये तो मैं बात बता रहा हूँ कि आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में कोटेड है, एफआईआर कोटेड है, चलान वर्ड कोटेड है, जबकि पूरे सीआरपीसी में वो वर्ड नहीं है. लाइकवाइज हियर से भी पूरे एविडेंस एक्ट में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तो उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है. Listen, I am not saying कि we are discussing about की definition of hearsay. कल हमारा जो टॉपिक था वो इसकी मीनिंग के ऊपर डिफरेंशिएशन का था, उसको हम क्लियर करने के लिए आगे आज प्रोसीड कर रहे थे. तो there was an opinion difference between Randeep ji and me. So that's why I'm asking him कि आप जो कहना चाह रहे हैं, I'm not cutting that point. नहीं, कटिंग की बात नहीं, ये तो हम डिस्कशन. नहीं, मेरे को रणदीप वाला पॉइंट समझ नहीं आया था, इस वजह से आई एम आस्किंग फ्रॉम रणदीप जी. रणदीप जी. अभिषेक जी, एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, सकाफत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2004 केआईआर सुप्रीम कोर्ट 2570, जिसमें वो हियरसे एविडेंस को डिफाइन करते हैं. द हियरसे एविडेंस मींस द स्टेटमेंट ऑफ अ विटनेस not based on his personal knowledge but on what he heard from others. This is what they define it as hearsay. अब hearsay मतलब मैंने किसी और से सुन ली, वो hearsay हो गई. Of mind, evidence act उसको exclude करता है, but certain exceptions देता है in form of section 6 देता है, dying declarations देता है, आपका entries in the books of accounts देता है, एंट्रीज इन पब्लिक रजिस्टर और रीजनेबल जैसे आपका रिकॉर्ड्स है वो है, और अ पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस. ठीक है जी, उनके स्टेटमेंट्स को भी साबित करने के लिए हमें तीसरे आदमी की कई बार जरूरत पड़ती है, तो उसको सर्टेन एक्सेप्शंस देता है, वो डिफाइन कहीं नहीं करता है को. इट्स जस्ट जनरल कि भी मेरी पर्सनल नॉलेज नहीं है, मैंने कहीं से सुना है, वो मैं आके बता रहा हूँ कोर्ट के सामने. तो कोर्ट इसलिए उसको एक्सक्लूड करती है बिकॉज देयर आर एक जगह और लिखते हैं ये लोग कि there are many reasons for rejecting hearsay evidence, the principal being the lack of an oath and lack of opportunity for cross examination. Other reasons include the dilution of truth by repetition or embellishment, the incentive to conceal or misrepresent. मतलब हर आदमी जिसने सुनी सुनाई बातों को अगर आके कोर्ट में कहेगा तो हो सकता है वो 4 बात फालतू कहे, 2 बात कम बताए कोर्ट को, जिसने उसको डायरेक्टली परसीव नहीं किया. तो इसलिए सर्टेन एक्सेप्शंस के साथ हियरसे को इंक्लूड करता है एविडेंस एक्ट, लेकिन सेक्शन 60 कहता है द ओरल एविडेंस और एनी एविडेंस शुड बी डायरेक्ट. बस इतना एविडेंस एक्ट के अंदर इसका जिक्र मिलता है मेरे हिसाब से हियरसे एविडेंस का. So, sir, state of mind for the purpose of identifying intent to defraud, will it be covered if a statement is given by anyone कि इन्होंने जो एक्ट किया वो with intent to defraud था, तो intent, to clarify the intent, the statement given will be hearsay or will be direct?
नहीं, आप एक बार दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज? मैं समझा, अपने आप को बताने की कोशिश करता हूँ। अगर एक क्वेश्चन आता है कि दैट पर्सन, ए पर्सन हैज डन समथिंग विद इंटेंट टू डिफ्रॉड, अब उसके इंटेंट उसके दिमाग में है, मेंस भी हमें प्रूव करना है सर, इंटेंट टू डिफ्रॉड, will intent will be completely different subject है, but अगर फिर भी आप कह रहे हैं तो that would be direct, because वो concerned person directly कह रहे हैं। सुरेंद्र सर, यहाँ पर जो मैं कहने की कोशिश करता हूँ, how a person, for example, let us say a psychologist has come and he has given the state of mind of the person. No, I feel this state of mind of the person or the circumstances lead कि नहीं उसका intent था, तो to prove an intent जो statement दी जा रही है, क्या वो hearsay नहीं होगा? Because it is not the thing which is direct, it is जो मैं perceive कर रहा हूँ, and it is not falling in the definition given by Randeep ji कि anything which is perceived by the five senses, it is not perceived by the five senses. ये जो perception और जो feelings हैं, ये that comes under the definition of fact. So if I have something, I have some feelings, so that comes under the fact. So what I am telling is, I am telling a fact. अभिनव जी, अगर मैं I'm wrong, please आप correct कर दें। अभिनव सर, हाँ जी हाँ जी, अगर मैं गलत हूँ थोड़ा सा करेक्ट कर दीजिए, क्योंकि वो एक फैक्ट की बात है, क्योंकि फीलिंग्स भी एक फैक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और इसमें ये कोई देखिए, हेयरसे का क्वेश्चन नहीं है, हेयरसे का क्वेश्चन नहीं है। और आपका अगर हम रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स जब उठाएंगे तो मेरे हिसाब से सेक्शन 9 है वो जो डील करता है इस चीज को। यस सर, मैं आई हैव अ बुक विद मी, आई जस्ट ओपन इट। सर मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा, बीच में कर सकता हूँ? अभिनव जी, सेक्शन 9 स्क्रीन पे है। तो जी एक अथॉरिटी जो मैंने शेयर की थी उस पे भी 3-4 पैराग्राफ्स अच्छे लिखे हुए हैं हियर से। हाँ, मैंने पढ़े हैं, अभी मैं शेयर कर देता हूँ। मैं एक बार इसको, अभिनव सर, आप कौन सी जजमेंट बता रहे थे, बताना डेफिनेशन वाली। एक सेकंड होल्ड करो, ग्रुप में डाल दीजिए।